Hi guys, this question has been asked multiple times to me that why did I leave AIMS Nagpur? So I thought to share my viewpoint. It may help people who are participating in INI set counseling or जो स्टार्ट होने वाला है नीट पीजी काउंसलिंग इज गोइंग ऑन. तो why did I leave? So I got All India rank 35 in INI set May 2024. I was very happy. My family was very happy. It was like dream come true. Then I chose MD Medicine in AIMS Nagpur. Why did I choose AIMS Nagpur? That's a very different story. But I was very happy that I got my dream branch, and medicine has been my dream branch, a dream specialty. I do not have plan B or another option. So many people I meet usually tell me that they have other options or plan B. For example, if they do not get medicine, they would take पीडिया, डर्मा, रेडियोलॉजी. रेडियो वाले डर्मा ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, सर्जरी वाले गायनी ले लेते हैं. सो सबके पास ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास. बट मेरा तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. मुझे मेडिसिन ही करना है. इफ़ आई एम बिकॉज आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग. मुझे मेडिसिन ही इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे मेडिसिन में ही मज़ा आता है. अगर मेडिसिन नहीं करने मिला तो आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स. आई एम हैप्पी एज MBBS. आई डू समथिंग एल्स इन लाइफ एंड I'll do decent whatever I'll do in life. That confidence I have. Coming to the point, why did I leave AIMS Nagpur? The working conditions there were not human. I did not. Um, I did not feel happy. I was not enjoying it. I was not excited as I was. कुछ मिसिंग था वहाँ पर. Conditions, as I said, were inhuman. जब बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं जैसे स्लीपिंग, ईटिंग, क्लीनिंग, बेदिंग एंड brushing, etc., when these things feel luxury and when there is no time to do these things, so I don't know how do you live that. तो आप कैसे जीते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड. एंड इट्स नॉट कि आपके पास टाइम नहीं है, दैट इज़ स्टिल अंडरस्टैंडेबल. बट द पीपल हैव रियली बैड माइंड सेट कि इफ़ दे हैव नॉट गॉट समथिंग और इफ़ दे हैव बीन थ्रू समथिंग, you should also go through the same, even if the situation has changed or efficiency has changed or the days have changed. But they feel that to achieve or get the same level of confidence or learn to come to that same level as they are, you need to go through the same inhuman harsh conditions, which I don't feel is right. एंड काफ़ी लोग हैं जो मतलब अभी फ़िलहाल रेजिडेंसी कर रहे हैं. दे विल से वी ऑल्सो डिड नॉट हैव टाइम. इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू फील देयर, राइट? इफ़ यू फील हैप्पी डूइंग समथिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, if it makes you excited, if you're enjoying it, then great. But why have we made this mindset that this has to be, the residency has to be this way? Why? Who told मतलब किसने बोला है कि रेजिडेंसी ऐसे ही होनी चाहिए, बस ऐसे चलता आ रहा है इसलिए ऐसे होना चाहिए? Why the conditions cannot improve? Why working conditions can't improve? They can, but we are just following the rat race, or I would say कि जो होता आ रहा है वही सही है. Nobody is questioning it, nobody feels that is wrong. See, मेरा एक सिंपल है कि अगर आप जो इंसान 10 घंटे काम करता है और जो 16 घंटे काम करता है, तो 10 घंटे काम करने वाला कम काम नहीं कर रहा है, फिर कम सीख नहीं रहा है. इफ़ द पर्सन हैज़ मोर एनर्जी, more excitement, is enjoying it, is happy doing it, he will do much more, he will learn much more than the person who is working for 16 hours like a dead man, not happy, tired, exhausted, not enjoying it. और ये ही दिस पर्सन विल लिव थ्रू इट. एंड दिस पर्सन, ये इंसान क्या सोचेगा ना कि मुझे सिर्फ वक्त निकालना है, कब ये ख़त्म होगा,
कब रेजिडेंसी का 6 महीने ख़त्म होगा, कब 1 साल ख़त्म होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इफ़ यू आर लर्निंग सच अ ग्रेट डिग्री, सच अ ग्रेट स्पेशलिटी, noble thing, then you should feel happy in doing it. You should be proud, you should enjoy it, you know, the thrill, everything. तो आई डोंट नो, मतलब आई फील कि अगर ऐसी कंडीशंस में आप काम आप सर्वाइव कर भी लेते हो तो हाउ विल इट चेंज यू। द टॉक्सिसिटी इन अ पर्टिकुलर वर्क प्लेस विल मेक यू टॉक्सिक एंड यू विल नॉट बी द सेम पर्सन, यू विल लूज एम्पैथी। आपके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं रहती है, आपके अंदर वो एम्पैथी नहीं रहती है, आप सेम टाइप के इंसान नहीं रहोगे अगर आपने वो फेस झेल लिया तो। और किसने बोला है यार कि आपको सक्सेसफुल बनना है, रिच बनना है, या फिर यू नो पावरफुल बनना है तो यू नीड टू गो थ्रू सच हेल? नो, यू डोंट। आई आई डोंट फील दैट देर आर पीपल हु आर डूइंग। तो आप खुद ही देख लो ना, पीजी सी मेरा ये मानना है कि पीजी ही सब कुछ नहीं होता। पीजी इज़ जस्ट द बेस और द फाउंडेशन ओवर विच यू बिल्ड योर नॉलेज एज योर एक्सपीरियंस ग्रोज। तो लर्निंग ख़त्म नहीं होती है पीजी पे, रादर इट स्टार्ट्स आफ्टर पीजी। पीजी के साथ लर्निंग ख़त्म नहीं होती, इट जस्ट गिव्स यू द बेस, द फाउंडेशन। तो और बहुत लोग बहुत ओवर स्ट्रेस करते हैं कि मतलब पीजी का कॉलेज हॉस्पिटल चूज़ करने से पहले कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड होने चाहिए, शुड हैव अ ग्रेट नेम टू बी सक्सेसफुल। बट जबकि ऐसा नहीं है यार, मतलब नाम के पीछे इतनी टॉक्सिसिटी झेलना है, इतनी इनह्यूमन कंडीशंस झेलना है, वेर यू आर नॉट हैप्पी, यू आर लिटरली स्पेंडिंग डेज इन समथिंग। And how will you come out as a physician from that institute? You will come out tired, exhausted, who needs rest, who need more family time, and you will never be uh, how would I say this, you will never be contained, or you will never feel the feeling of fulfillment. You will feel that I lost time, I lost टू बी विथ फ्रेंड्स, फैमिली, इन्जॉयमेंट, बहुत कुछ लूज़ किया है। तो जितने भी लोग हैं जो पीजी का हॉस्पिटल अभी फिर के चूज़ करने टाइम ओवर थिंक करते हैं, ये होना चाहिए, कुछ मैटर नहीं करता है भाई। तो तेरे एरिया में, तेरी जगह पे 15 डॉक्टर्स ले ले जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हु आर डूइंग ग्रेट इन देयर प्रोफेशन। वाई आर दे फेमस? बिकॉज ऑफ देयर पीजी कॉलेज। क्या मतलब, डू यू इवन रिमेंबर? सबका पीजी कॉलेज याद भी है सबको? नहीं, तुझे भी याद नहीं होगा, 1-2 लोगों का याद होगा। और अगर ऐसा ही होता तो ऐसा होता ना कि जो टॉप इंस्टीट्यूट से निकल रहा है सिर्फ वही अच्छा करेगा, बाकी तो कोई अच्छा करेगा ही नहीं लाइफ में। सिर्फ एम्स दिल्ली से जो निकल रहे हैं वही लाइफ में ग्रेट करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, एंड दे विल अचीव ग्रेट सक्सेस। बट ऐसा नहीं है ना, पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड दे अचीव द सेम लेवल ऑफ सक्सेस, रादर उससे बड़ा सक्सेस हासिल करते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव समथिंग इन देम, दे ब्रिंग सम यूनिक थिंग्स विद देम। और तो बहुत ही सिंपल है, इतना स्ट्रेस मत, जो भी लोग अभी फ़िलहाल पीजी का हॉस्पिटल चूज़ करने में स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना स्ट्रेस मत डालो, इतना ओवर थिंक मत करो। आई एम गोइंग टू टेक मेडिसिन नाउ इन मुंबई। आई डोंट केयर वेदर आई गेट एमडी मेडिसिन, आई गेट डीएनबी मेडिसिन। आई हैव सीन लॉट ऑफ गुड कंसल्टेंट्स in great corporate hospitals who are DNB medicine. I've seen many DNB people who have had great private practice. So it's about it's about the person, you know, it's never about the degree. I've seen many MDs who are not doing very great in life, they are not very confident. It's always about the person. आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू विल डू इट। और इफ़ आई एम हैप्पी और मैं खुश हूँ जहाँ पे मैं, the working conditions are suiting me, I'm able to live, I'm able to enjoy the journey, I'm able to enjoy the process, 100% मैं कुछ वहाँ पे बड़ा ही करूँगा, कुछ डिसेंट ही करूँगा। merely the name of the degree will not decide how successful I will be in future. और किसी कोई MD मेडिसिन एम से करके आएगा, आई एम 100% श्योर, आई हैव कॉन्फिडेंस, मैं उससे तो काफ़ी बेटर करूँगा लाइफ में यार, इफ़ आई एम हैप्पी, इफ़ आई एम enjoying the process. I want to clarify one thing here is that I'm not blaming an individual person or individual faculty here. In fact, the faculty at AIIMS Nagpur is great, especially the medicine faculty. They are very helpful. Uh,
they teach very good in rounds. Rounds are, you know, fabulous in terms of learning. There are open discussions, no discriminations. uh, you are allowed to discuss, allowed to ask. Faculties make it very easy for you, and in fact they are very helpful. जब उनको पता चला I am not happy or I am thinking to leave, the most of the faculties came to me and asked me and tried to address and tried to solve whatever issue I had, tried to talk to me, tried to ask me what are the other opportunities you have, what can be done. Even the HOD ma'am, she's a great lady. She gave me motherly advices about life, about future, about uh, whether I should do it from Mumbai, how should I pursue in life, and other teachers also. So I'm not blaming a individual person. I'm blaming the system. I'm blaming the mindset. We do not have a mind which questions something which is not necessary. I think a mind which questions everything it sees is a God gift. And I have a mindset which questions things which I don't feel is is right, or something which has been just going on for years. The system is not good. I'm sure many people will go in that system, will adapt to it, will forget life, will forget basic things. But I'm just afraid they will not be the same person who came with excitement, with dreaming. They will not be sensitive enough. They will not be uh, very good with their juniors. They will, in those things will come into them eventually. So, and I'm very happy in seeing that recent trends that people are leaving toxic colleges, toxic hospitals. They are not choosing toxic departments. और एक बेसिक क्वेश्चन माइंडसेट रखो यार कि किसी ने अगर लास्ट ईयर कोई हॉस्पिटल लिया था, कोई इंस्टीट्यूट पहले नंबर पे डाला था, तो ज़रूरी नहीं है ना अभी वही डालोगे. जस्ट यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड ब्लाइंडली. Choose what you like, talk to the department. If the department is good, you will flourish in that department. uh, what I would advise is कि PG सीट लेनी है तो अपने आसपास कोई इंस्टीट्यूट में लो. मतलब आपकी सिटी के अंदर या फिर अराउंड योर होम, इफ़ यू हैव सपोर्टिव फैमिली, सपोर्टिव ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजिन्स. In case you don't feel right, they may come to you, talk to you. You can go there for a day if you are around. uh, in case you're an adventurer, you like to explore, you can go outside your city. But ओवर स्ट्रेस मत करना कि बहुत बड़ा नाम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुड एकेडमिक्स होने चाहिए. ये 3 साल आपको ग्रेट फिजिशियन नहीं बनाते हैं. इट्स द एक्सपीरियंस आफ्टर विच, आफ्टर दीज 3 years विच मेक यू. और बस यही पॉइंट आई नीडेड टू शेयर. इट वॉज नॉट अ वेरी ईजी डिसीजन. बहुत डिफ़िकल्ट था. और एज अ नॉर्मल पर्सन आई ऑल्सो went through overthinking, am I doing it right? But I had the courage to take it. I took this decision, a bold decision, I would say. And I'm very happy and I'm very confident about myself कि मैं लाइफ में अच्छा ही करूँगा, काफ़ी अच्छा करूँगा इनफैक्ट. जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं लाइफ में यार, कहीं भी सफ़र कर रहे हो तो बी बोल्ड, बी डोंट बी, वो होता है ना, मतलब क्राउड का हिस्सा मत बनो यार. Take that bold step, bold decision that you think is right for you. और सक्सेस की गारंटी तो कहीं नहीं है ना. कितने MD मेडिसिन वाले हैं, कितने MD डिग्री लेके घूम रहे हैं, आर दे सक्सेसफुल, डू यू नो ऑल देयर नेम्स? नहीं पता है ना. इट्स योर एबिलिटी. अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, तो आप कहीं भी जाके फाड़ने ही वाले हो. सिंपल. तो बस यही मेरा व्यू पॉइंट शेयर करना था. आई होप इट हेल्प्स. काफ़ी लोग अभी काउंसलिंग में पार्ट लेने वाले हैं. INI सेट का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है. ICAS स्टार्ट हो गया है और नीट का तो ऑलरेडी स्टार्टेड, नीट का ऑलरेडी चल रहा है. आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.